Okay, welcome students for continuation of basicity of amines. In the previous lecture, we had seen basic nature of alkyl amine. So, alkyl amines basicity order is ammonia is less basic than primary amine, is less basic than secondary amine, but secondary amine is more basic than tertiary amine. This was the trend according to pKb value. So this alkyl amine basicity is the trend we see as per the pKb value. pKb value will provide us this information. And we had seen that factors affecting basicity of amines is influenced by structural factors of amines, such as क्या फैक्टर देखे थे हमने, such as फर्स्ट फैक्टर क्या था, फर्स्ट फैक्टर was plus I effect of alkyl group. Then इसके हिसाब से हमने देखा था ट्रेंड क्या बनता है, but this is not sufficient to explain the basic nature of amine. Then what we had seen, the second factor, solvation by water molecule, solvation by water. This is also not capable of explaining this trend. Then हमने क्या किया था, इसका combined effect देखा था, इसका combined effect of these two will explain that ammonia is less basic than primary amine is less basic than secondary amine, but secondary amine is more basic than tertiary amine. Now, in continuation of basicity of amines, today we will take basicity of aryl amine. अराइल अमाइंस के लिए एग्जाम्पल हम क्या फॉलो करने वाले हैं, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल एनिलीन, दैट इज बेंजीन अमाइन, है ना, एनिलीन दैट इज बेंजील अमाइन we will consider for explaining basicity of aryl amine. Now, when we see the pKb value of aniline, it is found to be something 9 very high value. It is found to be 9.38 pKb value. और यहाँ क्या था, 4 और 3 के बीच में था. In aryl amine it was 4 and 3. तो pKb value of aniline is 9.38 और हमारा लॉजिक क्या है, greater the pKb value, weaker is the base. Greater the pKb value, weaker is the base. So as per this pKb value, aniline is found to be a weak base. It is found to be a weak base
why it is a weak base, that we will prove scientifically, है ना. Why this value has come to such a higher value, that can be explained with the help of structure of aniline. It is observed that in aniline the structure gets stabilized, through resonance. As a result, क्या होता है यहाँ पर? Result, the lone pair of electron on nitrogen atom is not available for bonding. Hence it is a weak base. क्योंकि हमें पता है बेसिक नेचर किसके कारण आता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एज पर द लेविस कंसेप्ट. और एनिलीन में भी ऐसा ही होने वाला है कि एनिलीन को जब हम यहाँ देखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में, तो ये बेंजीन रिंग आ गया और ये नाइट्रोजन कनेक्ट हो गया, N2 हाइड्रोजन NH2. और ये जो लोन पेयर है, this lone pair, if this lone pair is available, it is basic in nature. But when we see the resonance effect on aniline molecule, what we see that there are double bond alternate in a benzene ring, and this lone pair of electron in conjugation with this double bond. In conjugation with the double bond, what we see that this electron pair is not available for further bond formation, and that can be explained with the help of resonance effect. तो बात चल रही थी कि एनिलीन की ये pKb वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों आ गई, और ज्यादा वैल्यू आने के कारण एनिलीन क्या हो गया? वीक बेस बन गया. उसका रीजन क्या है कि इट गेट स्टेबलाइज, दिस एनिलीन गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, uses its lone pair and not available for bond formation. That's why aniline becomes a weak base. देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट कैसे आएगा. आपको हमने ये कभी पढ़ाया था रेजोनेंस इफेक्ट समझाने के लिए. अब एनिलीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए वी हैव टू ड्रॉ 5 सच स्ट्रक्चर. तो मैं यहाँ ये 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ एनिलीन के लिए, एंड देन वी विल सी द रेजोनेंस इफेक्ट हियर. अब एनिलीन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे, उसमें अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है तो ये बेसिक नेचर हो जाएगा, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो बेसिक नेचर नहीं होगा. क्योंकि हमने क्या देखा था कि ये प्लस आई इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट में जो कॉन्जुगेटेड एसिड बन रहा है ना, एनिलीन का भी कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टडी करेंगे हम, जैसे हमने अल्काइल अमाइन का किया था. तो ये हमने यहाँ पर एनिलीन लिख दिया, NH2 लोन पेयर. अब इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना है तो हम इसे काय के साथ ट्रीट करते हैं? वाटर के साथ. वाटर के साथ ट्रीट किया तो हमें मिलता क्या है यहाँ पर? एनिलीनियम आयन. एनिलीनियम आयन देखिए किस तरह से आ जाएगा. एनिलीनियम आयन क्या होगा? यहाँ से
ये लोन पेयर के साथ में ये प्रोटॉन अट्रैक्ट हो जाएगा, एंड व्हेन इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन it will create a bond, and this nitrogen now becomes positively charged. Correct? और ये बना प्रोटोनेटेड एनिलीन, जिसको हम कहते हैं एनिलीनियम आयन, और इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड एसिड। कॉन्जुगेटेड एसिड। तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड जो यहां क्रिएट हुआ, दिस कॉन्जुगेटेड एसिड, अब बचा क्या यहां पर? OH माइनस आयन। तो दिस एनिलीनियम आयन एंड एनिलीन, इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड है, ये दोनों में से कौन स्टेबल है, ये चेक करने का है। तो हमारी बात चल रही थी कि एनिलीन वीक बेस क्यों है? क्योंकि उसका स्टेबलाइजेशन हो जाता है रेजोनेंस के कारण। अब यहाँ पर हम बनाते हैं एनिलीन, देखते जाएंगे थोड़ा केयरफुली। एंड हियर इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नाउ these are the 3 double bonds in the benzene ring. Now what happens? This lone pair of electron getting attracted towards the benzene ring because it is more electronegative, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने तरफ पुल करेगा। जैसे इसने अपने तरफ पुल किया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, और यहाँ क्रिएट हो जाएगा डबल बॉन्ड NH2। Now this nitrogen is a tetravalent, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट है? और ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अब कहां पर लोकेट हो जाएगी? दिस विल बी लोकेटेड एट ऑर्थो पोजीशन। ओके, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये इसका रेजोनेटिंग इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा इफेक्ट? नाउ दिस विल try to create double bond here. As soon as this has created a double bond here, क्या होगा? यहाँ का डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा पोजीशन पे लोकेट हो जाएगी, और पैरा पोजीशन पे लोकेट हो गई तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3 ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। फर्दर माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? दिस वी विल सी नाउ। अब दिस विल ट्राई टू क्रिएट बॉन्ड हियर। एज सुन एज इट क्रिएट्स अ बॉन्ड हियर, क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट के बदले एक दूसरे के आजू बाजू आ जाएंगे, तो इमीडिएटली ये क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो पोजीशन पे ले जाएगा, और ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। अब फर्दर माइग्रेशन कैसा होगा ये देख लो आप। ये बॉन्ड तो अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज विल ट्राई टू क्रिएट बॉन्ड हियर। जैसे उसने बॉन्ड क्रिएट किया, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो फिर से दोनों डबल बॉन्ड नहीं आएंगे, कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वापस नाइट्रोजन पे गई, वापस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर चली गई, और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया नंबर 4 एंड नंबर 5। सो दिस 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन है ना, ये कंपाउंड क्या है बेटा? ये एनिलीन है। दिस 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन स्टेबलाइजेस इट, एंड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर रिएक्शन। फर्दर रिएक्शन क्या? यही वाटर सॉल्युबिलिटी देखेंगे आप कि ये प्रोटॉन के लिए, अब इसमें अगर आप प्रोटॉन लेके आओ, यहाँ पर HOH वाटर वाला एक प्रोटॉन लेके आओ,
तो ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा, जा सकता है क्या इधर, क्योंकि प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता, और नाइट्रोजन पे है क्या इलेक्ट्रॉन पेयर, नहीं है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो ये प्रोटॉन अट्रैक्ट नहीं होगा। प्रोटॉन अट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर ये वाले कंपाउंड का बेसिक नेचर हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए इसका बेसिक नेचर जो रहेगा वो बहुत वीक रहेगा। एनिलीन विल बी अ वीक बेस with pKb value around 9.38. So that's why aniline, that is arylamine, all arylamine are weak bases because they get stabilized through resonance. Okay, अब ये एनिलीन का देख लिया, आप ये एनिलीनियम आयन को देख लो, प्रोटोनेटेड एनिलीन और एनिलीनियम आयन। अब एनिलीनियम आयन में भी रेजोनेंस लगा सकते हैं ना, क्योंकि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ भी रेजोनेंस अप्लाई कर सकेंगे हम। तो ये लिखते हैं एनिलीनियम आयन, क्या फॉर्मूला है, NH3 विथ पॉजिटिव चार्ज, ये है एनिलीनियम, आपको बोर्ड पे दिख रहा है, एनिलीनियम आयन, प्रोटोनेटेड एनिलीन और कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ एनिलीन। ये एनिलीन बेसिक है, वो उसका कॉन्जुगेट एसिड बना। अब इसमें जो रेजोनेंस एप्लीकेबल होगा उसमें है क्या इलेक्ट्रॉन पेयर, ट्रांसफर हो सकता है क्या कुछ, यहाँ पर कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन से मूव करेंगे, इनसाइड द बेंजीन रिंग। जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के, they will keep on moving, but nitrogen is no more having free or lone pair of electron, hence this will remain as it is. The only change we see is the position of double bond in anilinium ion, and through this resonance it get stabilized. So anilinium ion get stabilized through resonance, and only two structures are sufficient. Two structures are sufficient for its stabilization. तो ये जल्दी ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। So but aniline requires such 5 structure to get stabilized, and that's why aromatic amine, especially aniline, is going to be a weak base. ये हमारा scientific explanation आ गया why aniline is a weak base. Okay, तो aniline weak base, this is what the point we had seen so far. Now we will see chemical properties of aniline. Let us see that part, chemical properties of aniline. तो basic nature of amines, very important question, है ना। This question you have to answer. Basic nature of amines, why amines are basic in nature, what is the trend of basicity of amines, what are the factors which are responsible for basicity of amines. और क्वेश्चन बन सकता है, why aryl amines are weak bases than aliphatic amines, why aromatic amines are weak bases as compared to aliphatic amines. ये भी पॉइंट आपको, ये भी क्वेश्चन मिलेगा। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ amines, केमिकल प्रॉपर्टीज of amines, chemical properties of amines, और उसमें देखते हैं lab test for basic nature of amine, lab test for basic nature of amine, lab test for basic nature of amines। इसमें हम क्या देखेंगे लैब टेस्ट में, एक तो हमको पता है लैब टेस्ट
वो लिटमस पेपर वाला जो सबसे सिंपल है, लिटमस पेपर। अब इसमें क्या चेंज होने वाला है लिटमस पेपर में? रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू, रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू। दैट इज व्हाट द टेस्ट फॉर लिटमस पेपर। उसके लिए क्या करेंगे? विल टेक अ वाटर soluble amine. Those amines which are water soluble will be tested with the help of litmus paper. तो aqueous solution बनाएंगे amines का and we will put red litmus in it, and if it turns to blue we will say that this sample of amine is basic in nature. तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट, बेसिक नेचर प्रूव करना है तो क्या करेंगे कि अमाइन को एसिड के साथ रिएक्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा वहां पर? सॉल्ट। ये भी एक टेस्ट हो सकता है। एनी सब्सटेंस which creates salt by reacting with acid will be a base. तो अमाइन को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन होती है क्या देखेंगे, और प्रोडक्ट क्या बनता है वो भी समझेंगे। एंड इफ वी गेट दैट सॉल्ट, दैट मीन्स यस अमाइन इज बेसिक इन नेचर। तो लैब टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? अमाइन को लेते हैं। अमाइन विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिएक्टेड विथ मिनरल एसिड। अब एसिड कौन सा लेंगे? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड से मतलब है HCl, H2SO4, HNO3, these are the mineral acid, they are the stronger acid. हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लेंगे, we will take mineral acid like HCl. तो ये हमारा अमाइन हो गया। reacted with aqueous solution of HCl, क्या एक्सपेक्टेड है अपने को? सॉल्ट बनना चाहिए, है ना, लोन पेयर है तो ये प्रोटॉन तो बेटा इधर चला गया, तो पक्की बात हो गई है कि जब प्रोटॉन यहाँ चला गया ये NH हो गया, नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर क्या बनेगा? अब ये पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज क्लोराइड को। तो एक बॉन्ड भी बन जाएगा आयोनिक यहाँ पर, तो ये बन गया ना सॉल्ट, है ना। ये 3 वैलेंसी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इज ए सॉल्ट। तो ये सॉल्ट बन गया। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट सजेस्ट दैट अमाइन इज बेसिक इन नेचर, जो हम लैब में प्रूव कर सकते हैं। इसी को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, तो क्या देखते हैं हम यहाँ पर कि ये जो सॉल्ट हमें मिला है ना, जो सॉल्ट आ गया है, इसी सॉल्ट को अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर दे, NaOH के साथ रिएक्ट करे, तो क्या हो जाएगा? हमें फिर से ये अमाइन मिल जाएगा। हमें फिर से अमाइन जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। अमाइन विल गेट रीजनरेटेड। तो रीजनरेटेड अमाइन, अमाइन रीजनरेटेड, और बाकी क्या बच जाएगा? NaCl and H2O. So by reacting with NaOH in aqueous medium confirms that this is an amine which is basic in nature. तो basic nature second reaction हमने क्या देखा कि अमाइन को रिएक्ट किया मिनरल एसिड के साथ में। ओके, तो ये हो गया लैब टेस्ट लिटमस पेपर 1। दूसरा हो गया मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन। अब एक तीसरा, एक कलर टेस्ट कर लेते हैं हम। कलर टेस्ट, उसे हम कहते हैं ऑरेंज डाई टेस्ट। ऑरेंज डाई टेस्ट, ऑरेंज डाई टेस्ट। इसमें क्या होता है? वी टेक अल्काइल और अराइल अमाइन, अल्काइल और अराइल अमाइन, which is reacted with few drops of concentrated HCl, few drops of concentrated HCl, aryl or alkyl amine plus HCl concentrated. It is then
mix with सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन। ये है सोडियम नाइट्राइट NaNO2, सोडियम नाइट्राइट अंडर कोल्ड कंडीशन। Under cold condition we add sodium nitrite, and to this solution again under cold condition we add alkaline beta naphthol. Alkaline beta naphthol. We take alkaline beta naphthol. तो alkyl or arylamine plus concentrated HCl plus sodium nitrite under cold condition. सोडियम नाइट्राइट के बाद क्या ऐड करना है? अल्कलाइन बीटा नेफ्थॉल. When we add them together, what we see a orange red dye. We get a orange red dye. थिक कलर का एक वहां पर प्रेसिपिटेशन आएगा जिसे हम कहेंगे ऑरेंज रेड डाई. द फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज रेड डाई बाय द एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, सोडियम नाइट्राइट एंड अल्कलाइन बीटा नेफ्थॉल, फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज रेड डाई फर्दर कंफर्म्स द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इन लेबोरेटरी. हमने थेरेटिकली इसको प्रूव किया था, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस है ना, पीकेबी वैल्यू निकाले, ये सब से हमने उसको प्रूव किया था. अब अगर लैब में आपको प्रूव करना है तो ये 3 टेस्ट होंगे. वैसे लिटमस टेस्ट को ज्यादा वेटेज नहीं होगा, वेटेज रहेगा रिएक्शन विथ मिनरल एसिड, और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कलर टेस्ट, दैट इज ऑरेंज रेड डाई. तो आपको एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन जनरेट होगा. हाउ विल यू कंफर्म बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस थ्रू सर्टन केमिकल रिएक्शन, और इन लैब हाउ विल यू कंफर्म, इन लेबोरेटरी हाउ विल यू कंफर्म बेसिक नेचर ऑफ अमाइन. तो लिटमस टेस्ट, रिएक्शन विथ मिनरल एसिड and orange dye test. Through these 3 we can confirm basic nature of amines in our laboratory. Okay, now next chemical reaction we will take, that is Hofmann's exhaustive alkylation. Hofmann's exhaustive alkylation. वैसे ये रिएक्शन हमने इसके पहले पढ़ा है, जब मैं यहाँ लिखूंगा तो आपके एकदम क्लियरली समझ में आएगा. Hofmann's exhaustive alkylation of amines. This is what the next reaction we will consider. अब इसमें क्या होता है? When aliphatic or aromatic primary amine, aliphatic or aromatic primary amine is heated with primary alkyl halide. अब primary amine क्या है? RNH2. primary alkyl halide क्या है? RH. If when they are heated together, what happens here? The hydrogen of this primary amine is replaced by alkyl group, and we get secondary amine. और यहाँ माइनस क्या रिमूव होगा? साइड प्रोडक्ट HX will be removed. तो ये आपको प्राइमरी अमाइन काय में कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी अमाइन में. दिस इज नोन एज अल्काइलेशन ऑफ अमाइन. ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि प्राइमरी अमाइन में क्या देखते हैं हम? देयर आर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया अल्काइल ग्रुप से, अल्काइलेशन हो गया, वी गेट सेकेंडरी अमाइन. अब सेकेंडरी अमाइन में भी क्या दिखता है अपने को? R2NH. इसमें भी एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है अभी भी,
तो इसे जब RX के साथ हीट करेंगे अल्काइल हलाइड, ना RX क्या है, अल्काइल हलाइड, ये तो चैप्टर में पढ़ा था हमने। अब फिर से क्या हो जाएगा, टर्शियरी अमाइन R3N, एक हाइड्रोजन था वो भी रिप्लेस हो गया, और साइड प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -HX, तो ये बना टर्शियरी अमाइन। करेक्ट है। अब ये सभी अमाइन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, अभी उन्होंने उनका लोन पेयर छोड़ा नहीं है नाइट्रोजन ने, नाइट्रोजन का लोन पेयर मेंटेन है, प्राइमरी पे लोन पेयर है, सेकेंडरी पे लोन पेयर है, और टर्शियरी पे भी लोन पेयर है। अब अगर ये अल्काइल हलाइड फिर से हम एक्सेस में यूज करते हैं ना, ये अल्काइल हलाइड इफ इट इज यूज्ड इन एक्सेस अमाउंट, तो क्या होगा, टर्शियरी अमाइन react with RX which is present in excess amount। हीट किया आपने तो हमें क्या मिल जाएगा, अब ये जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर से बॉन्ड बना लेगा, तो यहां पर हमें मिलता है इस टाइप का स्ट्रक्चर प्लस X, ये हेलोजन अलग से, और नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट हो गया तो उस पे पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, R4N विथ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन, है ना, ये क्या है, टेट्रा अल्काइल, 4 ग्रुप है अल्काइल के, टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन, and it is called as quaternary ammonium ion, क्वाटरनरी अमोनियम आयन। कैसे बना क्वाटरनरी अमोनियम आयन, अब ये क्वाटरनरी अमोनियम आयन में एक और बात होगी जो मैंने यहां पर कहा था आपसे कि ये क्या बॉन्ड बनाता, कोऑर्डिन, एक बॉन्ड बनाएगा आयोनिक, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज, तो क्लोरीन यानी हेलोजन, अभी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों वापस अट्रैक्ट होके आपको क्या दे देंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन या क्वाटरनरी अमोनियम आयन इनफैक्ट अवेलेबल कैसा होता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के जैसा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट वी गेट। तो हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन ऑफ अमाइन, एग्जॉस्टिव ये वर्ड को हम ध्यान में रखेंगे तो क्या करना है कि उसमें ऐड करते जाना है अल्काइल हलाइड जब तक के हमको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं मिलता, जब तक ये एग्जॉस्ट नहीं हो जाता अपनी वैलेंसी से। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस है, लगा दिया दाव पे, तो दोनों को अपन ने देखा कि एक सेकेंडरी बना दिया, एक टर्शियरी बना दिया, अभी फिर से तैयार है वो, बोलता कि हाँ आ जाओ फिर से अल्काइल हलाइड, और मेरे पास में लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर भी दाव पे लगा देता, तो लोन पेयर के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाया तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई टेट्रा, और वो टेट्रा वैलेंसी नाइट्रोजन की हेलोजन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन का हेलोजन को अट्रैक्ट कर सकता है, और जब इसे अट्रैक्ट करेगा तो वहां पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। तो ये है अपना फंडा कि यहाँ पर हमें क्वाटरनरी अमोनियम आयन जो है इसको अब हम बोल सकते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। हमने समझा दिया, पहले आयन करके समझाया था, अब उस आयन को हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया, यस इट इज अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड है ना, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड, तो ये बन गया सॉल्ट। सही है। तो हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन क्या रिएक्शन है, व्हेन प्राइमरी अमाइन इज हीटेड विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ प्राइमरी अल्काइल हलाइड, है ना, excess amount of primary alkyl halide, then
it gives secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt, and it gives quaternary ammonium salt. तो देखते हैं इसको अभी एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। ये तो जनरल रिएक्शन लिख दिया, इसी का एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग, है ना। विल टेक एग्जाम्पल ऑफ इट, और वो एग्जाम्पल में समझते हैं फंडा क्या होगा। फॉर दैट वी विल टेक मिथाइल अमाइन CH3NH2। मिथाइल अमाइन लिया आपने, मिथाइल अमाइन, और इस मिथाइल अमाइन में अब हम मिथाइलेशन करेंगे, मिथाइल आयोडाइड यूज करेंगे। हीट करना है रिएक्शन में, हीट करना है, क्या हो जाएगा, दिस मिथाइल विल रिप्लेस हाइड्रोजन, तो आपको मिलेगा CH3 2 टाइम्स हो जाएगा। आई होप समझ रहा होगा सभी को डायरेक्टली, है ना। CH2 2 टाइम्स, हियर नाइट्रोजन विथ लोन पेयर, एक हाइड्रोजन चला गया, एक बचा है उसके पास। जो हाइड्रोजन यहां से निकला वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, आयोडाइड के साथ, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये बन गया आपका डाइमिथाइल अमाइन। आपने मिथाइल आयोडाइड लिया था अल्काइलेशन के लिए, मिथाइलेशन, मिथाइल आयोडाइड, ये होगी फर्स्ट रिएक्शन। अब सेकंड में क्या करेंगे आप, सेकंड में लेंगे सेकेंडरी अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन। इसे फिर से किसके साथ हीट करना है, मिथाइल आयोडाइड के साथ में। वी टेक मिथाइल आयोडाइड, हीट करें, हाँ जी। अब क्या होगा, वन मोर हाइड्रोजन रिमेन्स that get replaced and we get trimethyl amine, trimethyl amine plus HI, तो ये बना trimethyl amine, trimethyl amine, करेक्ट, trimethyl amine आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि ये तो मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में है, मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में है, तो टर्शियरी क्या बोलता कि अभी ट्राइमिथाइल अमाइन क्या बोलता है, यस आई एम स्टिल कैरी अ लोन पेयर, कम ऑन आई विल फाइट, आई विल क्रिएट बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, अपनी लोन पेयर को भी अब इसके साथ यूज कर लेगा बॉन्ड बनाने के लिए। हीट किया तो अब ये एक और CH3 आ गया, तो क्या बन गया, CH3 4 टाइम्स नाइट्रोजन की लोन पेयर तो बॉन्ड बनाने में काम आ गई, तो नाइट्रोजन पे क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये आयोडाइड पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। अब ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बोलो, क्या है, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड, तो नाम क्या बनेगा इसका, टेट्रा मिथाइल, 4 टाइम्स है मिथाइल ग्रुप, टेट्रा मिथाइल अमोनियम। अमोनियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम आयोडाइड, टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड is a quaternary ammonium salt. Here we have used methyl iodide as an alkylating agent, and this is known as methylation of amine. It is known as methylation of amine. So this is what the Hoffman's exhaustive alkylation of amine आपने एग्जाम्पल के साथ समझ लिया। अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं, ये भी हॉफमैन का ही काम है ना, अपने लिए एक एक रिएक्शन बढ़ाते जाने का। हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको यहां पढ़ने का एडवांटेज क्या हो जाएगा
कि हमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ही यूज करना है, हॉफमैन्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सेकेंड रिएक्शन हो गई थी हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, दैट इज ओवर। नाउ वी विल मूव टू हॉफमैन्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। Hoffman's beta elimination reaction is what? A reaction where hydrogen atom get eliminated from beta carbon atom. Hoffman's beta elimination reaction. यहाँ लिखता हूँ फिर से मैं, Hoffman's beta elimination reaction. And this reaction is carried out with quaternary ammonium salt. Hoffman's beta elimination reaction. For this, what we will do, we will take quaternary ammonium salt. देखेंगे जरा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं मैं। CH3 CH2 CH2 ये हो गया प्रोपाइल ग्रुप, है ना। यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन पे हम प्लेस करते हैं 2 इथाइल ग्रुप और तीसरा भी इथाइल ग्रुप। तो अब ये बन गया क्वाटरनरी हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसके साथ में हम यहाँ पर ये आयोडाइड लगा देते हैं। तो ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड, क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट। इसका नोमेनक्लेचर कर लो जरा यहीं पर, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नोमेनक्लेचर में क्या है, इट्स अ मिक्स टर्शियरी क्वाटरनरी सॉल्ट, है ना, इट इज अ मिक्स क्वाटरनरी सॉल्ट। तो इसमें ये 3 इथाइल ग्रुप और ये एक प्रोपाइल ग्रुप। तो बड़ा कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल। तो ये प्रोपाइल बड़ा ग्रुप हो गया। ये प्रोपाइल अमाइन के नाइट्रोजन के साथ 3 इथाइल ग्रुप ज्वाइन है। कैसा है कि ये प्रोपाइल अमाइन CH3 CH2 CH2N, ये प्रोपाइल अमाइन के साथ 3 इथाइल ग्रुप ज्वाइन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, N, N ट्राई इथाइल है। क्या ट्राई इथाइल, प्रोपेनमाइन। अब प्रोपेनमाइन तो नहीं है, अमोनियम है, ये अमाइन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ट्राई इथाइल प्रोपेनअमोनियम आयोडाइड, प्रोपेन अमोनियम आयोडाइड, ये नोमेनक्लेचर बना इसका, प्रोपेन अमोनियम आयोडाइड। तो ये है आपका क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट। व्हेन दिस इज हीटेड विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, आपको पता है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड AgO मॉइस्ट करना है तो उसके साथ वाटर ऐड कर दो। तो ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला बना। लेकिन ये फॉर्मूले से हमें रिएक्टिव कंपाउंड कौन सा मिलता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। आप ये दोनों को रिएक्ट करो, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर, तो आपको मिलेगा ट्वाइस AgOH। तो ये मिलेगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हॉफमैन्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन के लिए आपको स्टार्टिंग कंपाउंड क्या लेना है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, दैट इज टू बी हीटेड विथ
मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। हीट करेंगे तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या देगा आपको? सिल्वर हाइड्रोक्साइड। जब इसके साथ हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड रिप्लेस करेगा आयोडाइड को और हमें मिलेगा क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड के बदले हाइड्रोक्साइड। देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा? CH3 CH2 CH2N। ये प्रोपेनमाइन हो गया। अब इसके साथ में यहां पर 2 और उसके बाद 3 इथाइल ग्रुप अटैच है C2H5। अब क्या होने वाला है? हमने रिएक्शन पढ़ा था कि ये सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्लस AgI, सिल्वर आयोडाइड। So we get hydroxide, quaternary ammonium hydroxide. इसका नोमेनक्लेचर फिर से बोल दो। अब आसान है आपके लिए नोमेनक्लेचर। आपने देख लिया कि ये तो इसका पेरेंट कंपाउंड हो गया था, तो उसके नाइट्रोजन के साथ 3 इथाइल ग्रुप है, NNN, ट्राई इथाइल, प्रोपेनोमोनियम, प्रोपेनोमोनियम। आयोडाइड के बदले क्या हो गया बेटा? अभी ये हाइड्रोक्साइड, करेक्ट है ना? प्रोपेनोमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और ये प्रोपेनोमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल तो निकलेगा और जो हमको पढ़ना है बीटा एलिमिनेशन, वो भी रिएक्शन होगा। अब बीटा एलिमिनेशन कहां से आएगा? द कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा कार्बन एंड द नेक्स्ट इज बीटा कार्बन। वैसे ही ये भी रहेगा, ये भी रहेगा और यहां भी ये अल्फा डैश कार्बन, ये बीटा डैश कार्बन, ये गामा डैश कार्बन आएगा। हमें बीटा एलिमिनेशन देखना है, तो आउट ऑफ दिस 3 वन ऑफ द कार्बन will lose its proton, its hydrogen, we call it as beta elimination। तो यहां से क्या होगा? ये जो CH3 है ना, देखो क्या हो रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप ध्यान देंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ये एक H वाटर के साथ रिमूव हो गया, ये OH के साथ रिमूव हो गया, तो क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल। अब जैसे ये रिमूव हो गया, ये क्या बचा? CH2 CH2, क्या बचा? CH2 CH2। तो इसके बीच में तो डबल बॉन्ड आना चाहिए, तब तो वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज एन अल्कीन नेम्ड एज ईथीन, करेक्ट है? तो ये ईथीन मिला और रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विल रिमेन एज इट इज, एंड रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज व्हाट? CH3 CH2 CH2 N with positive charge and no, not positive charge now, N के साथ में ये CH2 CH3 and here also CH2 CH3। डाइइथाइल प्रोपेनमाइन। अब ये अमोनियम रहेगा क्या? नहीं, एक वैलेंसी फ्री हो गई, एक वैलेंसी फ्री हो गई तो ये आ गया इस पे लोन पेयर। तो ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या बना? NN डाइइथाइल, NN डाइइथाइल प्रोपेनमाइन, प्रोपेन अमाइन। देखिए नोमेनक्लेचर, रिमूव क्या हुआ? ये बीटा कार्बन से, ये बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन चला गया,
हाइड्रोक्साइड के साथ एज ए वाटर मॉलिक्यूल आपको क्या मिला, इथीन एंड NN डाइइथाइल प्रोपेनामाइन. दिस इज नोन एज हॉफमैन्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. करेक्ट है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, इनडायरेक्ट तरीके से. फिर अभी इसका ये समझ गया तो क्वेश्चन आना चाहिए, और जब हम क्वेश्चन देते हैं जो कोरिलेट कर पाता है वो आंसर देता है. क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ विल यू कन्वर्ट अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इनटू एन अल्कीन. हाउ विल यू कन्वर्ट अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इनटू एन अल्कीन. अब जिसने पढ़ा नहीं, जिसने ध्यान नहीं दिया, उसको ये क्वेश्चन समझता ही नहीं. क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तो शुरुआत वहां से होती, ये कौन से चिड़िया का नाम है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. अब अल्कीन बनाना यानी डबल बॉन्ड लाना है. डबल बॉन्ड यहाँ तो कहीं दिखता ही नहीं क्वाटरनरी में, तो वो कैसे होगा, तो वो होता है बीटा एलिमिनेशन से. करेक्ट है. तो बीटा एलिमिनेशन तो हमें कनेक्ट करते आना चाहिए कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से अल्कीन यानी हॉफमैन्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. इसीलिए हमें क्या करना होता है कि एक मेमोरी चार्ट बनाना होता है, उसमें ये कीवर्ड को लिखना होता है हमें कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कैन बी कन्वर्टेड टू अल्कीन थ्रू हॉफमैन्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. करेक्ट है. तो ये बच्चा लोग देखो ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट लो. नोमेनक्लेचर भी पूरा लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझा दिया गया है कि बीटा एलिमिनेशन यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और अल्कीन मिलेगा. आप कहीं से भी कर सकते हैं बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन, ये तीनों में से. यहाँ से नहीं पॉसिबल है ना, ये बीच में से नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ से बीटा एलिमिनेशन आपको अल्कीन मिलेगा. ठीक है. तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे इसकी केमिकल रिएक्शन अमाइंस की इन द नेक्स्ट क्लास. सी यू सून.